نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیو ایس ٹی وی کے ناظرین اور سامعین محترم، آج کا موضوع ہے سچائی اور جھوٹ۔ سچائی کی فضیلت، سچائی کے فائدے اور جھوٹ کی مذمت اور ہلاکت۔ آج کل زیادہ طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، فلاح ہے، بقا ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آج کاروباری لوگ ہیں، دکان والا ہے، کسی بھی کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، چھوٹے کاروبار والا، بڑے کاروبار والا، جھوٹ کا اندھیر ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور دکاندار جب سودا بیچنے لگتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے قسم کھا کر سودا تو بک جائے گا لیکن برکت نہ رہے گی۔ جھوٹ میں ہلاکت ہے، اور ایک جھوٹ ہے، ایک جھٹلانا ہے۔ انبیاء کرام کو جنہوں نے جھٹلایا وہ ہلاک ہو گئے، جنہوں نے جو انبیاء سچ لے کر آئے اس سچائی کو اپنایا، صدق کو اپنایا، وہ فلاح اور بقا پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور عوام نے ان کو، اس قوم نے، قوم نوح نے جھٹلایا آپ کو۔ 950 سال تبلیغ کے باوجود جھٹلایا۔ 88 افراد یا اس کے کم و پیش ایمان لے آئے، باقی سب جھٹلانے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانا، ایمان لے آئے، سچائی کو اپنایا، وہ فلاح پا گئے کشتی کے ذریعے سے، اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ہلاک ہو گئے۔ اور کفار مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی علیہ السلام کے دین کو سچ مانا، آپ کو سچا مانا، وہ فلاح پا گئے۔ اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو جھٹلایا، اس کتاب کو، قرآن مجید کو جھٹلایا، وہ ہلاک ہو گئے۔ کچھ بدر کے میدان میں، کچھ احد کے میدان میں، اور کچھ بعد میں یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ صدق جو ہے، سچائی نجات دیتی ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 خصلتیں، بری خصلتیں ہیں، اگر ان میں سے اگر آپ ایک کو آپ چھڑا دیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر کون سی 4 بری خصلتیں ہیں؟ عرض کی آقا، میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ کو پسند کرتا ہوں، اور میں زنا کو پسند کرتا ہوں، میں چوری کو پسند کرتا ہوں، میں شراب کو پسند کرتا ہوں۔ یہ 4 بری باتیں میرے اندر پسندیدہ ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ان میں سے ایک کو آپ چھوڑا دیں میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو وہ شخص ایمان لے آیا اور جھوٹ چھوڑ دیا۔ بعد میں کیا ہے، رات جب ہوئی تو چوری کرنے لگا، سوچا کہ صبح کا اگر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چوری کی تھی، اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر سچ بولوں گا تو میرے اوپر حد قائم کر دی جائے گی، لہذا چوری نہ کی۔
दूसरी रात हुई तो फिर शराब पीने लगा और फिर सोचा, सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा और हुजूर ने पूछा कि शराब पी थी, अगर सच बोल दिया कि शराब पी तो हद कायम हो जाएगी, अगर झूठ बोला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे खिलाफी हो जाएगी, ऐद की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो फिर एक और रात आई तो फिर वो जिना करने लगा, जिना के करीब जाने लगा, तो जिना की ख्वाहिश हुई, सोचा अगर जिना करूंगा तो सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिना किया, झूठ बोलूंगा वादे खिलाफी होगी और अगर सच बोलूंगा तो मुझ पर हद कायम कर दी जाएगी। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सिर्फ मुझसे झूठ छुड़ाया और इसी झूठ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे सारी बुरी खसलतें छुड़ा दी हैं। मैंने झूठ को छोड़ा, सारी बुरी खसलतें ही छूट गई। अल्लाह अकबर। लिहाजा बंदा झूठ बोल दे, सच को अपनाए तो सच में बहुत ज्यादा भलाइयां रखी हुई हैं। जो सच्चा होगा वो हर बुराई से पाक होने की कोशिश जरूर करेगा, वो रास्तबाज होगा, रास्तगो होगा, ईमानदार होगा, वादे को पूरा करेगा, अहद को वफा करेगा, दिलेर होगा, दिल का साफ होगा, रियाकार ना होगा और उसका दिल निफाक वाला ना होगा, पीछे कुछ और सामने कुछ उसकी शान ना होगी, खुशामदी नहीं होगा, सबके भरोसे के काबिल होगा, लोगों को उसके कौल और फेल पर एतबार होगा। एक आदमी अगर झूठा है, बार बार झूठ बोलता है, लोगों का एतबार खो रहा है, लोग उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार झूठा है, झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, लिहाजा इस पे एतबार नहीं करना। लेकिन जो सच्चा होता है वो काबिल एतबार होता है, उस पर हर आदमी एतबार करता है, बड़ा हो छोटा हो उसमें एतबार करता है। लिहाजा सच्चाई को अपनाओ। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम पैगंबर सच्चे थे। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे पैगंबर सच्चे थे, इब्राहिम भी सच्चे थे। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने उनका जिक्र फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चाई के मुतालिक इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा, अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा हो सकता है। अल्लाह अगर सच्चा है तो फिर ये दीन भी सच्चा है और दीन के अंदर सच्चाई की फजीलत है, सच्चाई की अहमियत है और झूठ की मुजम्मत है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह की झूठे पर लानत है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह निसा के अंदर, वअदल्लाहि हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वादा किया अल्लाह ने सच और कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा बात करने वाला कौन है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्ना लसादिकून, हम सच्चे हैं। और कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और महबूब फरमा दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया तो इब्राहिम यानी कि दीन हनीफ की पैरवी करो। दीन हनीफ भी सच्चा है, अल्लाह का कलाम भी सच्चा है, लिहाजा इसको, इस सच्चाई को अपनाओ। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो सच्चाई को लेकर आया, उस सच्चाई को सच माना, वही तो परहेजगार है। अल्लाह ताला ने सच्चे को परहेजगार कहा है। जो सच्चाई को अपनाए, सिद्क पर कायम रहे, सच्चाई को अपनाए, वही परहेजगार है, अल्लाह के नजदीक परहेजगार है। अल्लाह ने गारंटी दी है जो परहेजगार होगा वो सच्चाई को अपनाएगा। लिहाजा सच्चाई परहेजगारी की तरफ ले जाती है और जो झूठ है वो बुराई की तरफ ले जाता है। बंदा सच को अपनाए, सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है, जन्नत के रास्ते पर ले जाती है, यहां तक कि वो सच बोलता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के हां वो सिद्दीक हो जाता है। और जो बंदा झूठ बोलता रहता है, झूठ बार बार बोलता है, अल्लाह के नजदीक वो झूठा हो जाता है और उसका ठिकाना जहन्नम में है।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु, खुदा और उसके रसूल ने सच कहा। अल्लाह भी सच्चा, उसके रसूल भी सच्चे। जो ईमान लाए उनको भी चाहिए कि वो सच को अपनाए, झूठ को ना अपनाए। जब जिस परवरदिगार की इबादत करता है ईमान वाला, वो भी सच्चा है। जिसकी पैरवी, जिस पैगंबर की पैरवी कर रहा है वो भी सच्चा है। तो फिर ईमान वाला क्यों नहीं सच्चा हो सकता, क्यों नहीं सच्चाई को अपनाता। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाया, वसदक़ल मुरसलून, और पैगंबरों ने सच कहा। पैगंबर तो होते ही सच्चे हैं। आदम भी सच्चे, नूह भी सच्चे, शीश भी सच्चे, इब्राहिम भी सच्चे, हजरत यूनुस भी सच्चे, हजरत इसहाक भी सच्चे, यूसुफ भी सच्चे। अल्लाह ने सारे पैगंबरों को सच्चा बनाया है, उन्होंने सिद्क़ को अपनाया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और पैगंबरों ने सच कहा। वसदक़ल मुरसलून, जब भी पैगंबर बोलता है सच बोलता है, झूठ कभी भी नहीं पैगंबर बोलता। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, किताब में इब्राहीम को देखो, याद करो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। इब्राहीम भी सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस को कुरान पाक में किताब में याद करो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। व उम्मुहु सिद्दीक़तुन, ईसा की मां मरियम को याद करो, मरियम को देखो, वो भी सच्ची थी, अल्लाह की सच्ची बंदी थी। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यूसुफ व अय्युहस सिद्दीक़, यूसुफ बहुत बड़े सच्चे थे। यूसुफ भी सच्चे, इब्राहिम भी सच्चे, इदरीस भी सच्चे। और अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या, किताब में इस्माइल का जिक्र, यानी कि उनको याद करो किताब के अंदर कि वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे और वादा सच्चा करने वाले थे और वादे को सच करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अस्साबिरीना वस्सादिकीना, सब्र करने वाले और सच्चे, यानी कि सब्र करने वालों की भी कुरान पाक में तारीफ है और सच्चों की भी कुरान पाक में तारीफ है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन अजरन अज़ीमा, बेशक इस्लाम कबूल करने वाले मर्द, औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और औरतें, फरमाबरदार मर्द और औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वो खुदा ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ी मजदूरी रखी है। लिहाजा जो सच्चे मर्द हैं, सच्ची औरतें हैं, उनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है, बहुत बड़ी मजदूरी रखी है। लिहाजा सच बोलो, सच को अपनाओ, क़यामत के दिन उसका अजर मिलेगा, अल्लाह के यहां इनाम मिलेगा। लिहाजा झूठ का दामन छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, सच को अपनाओ। सच के अंदर बरकतें हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हादा यौम यनफ़उ सादिकीन, ये दिन है कि सच्चे बंदों को उनका सच जो है वो सादिकीन सिद्क़ुहुम, कि उनके ये दिन है कि सच्चे बंदों को उनका सच का काम आएगा। कारोबारी लोग जो है वो अगर सच को अपनाएं, कारोबार सच के साथ जो है वो चलाएं, अगर झूठी कसम ना खाएं, झूठी कसम खाकर माल ना बेचें, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको सच का बदला जरूर अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठी कसम खाकर माल बेचता है, माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत न रहेगी। मेरे भाई झूठ छोड़ दे, मेरी बहन झूठ छोड़ दे, और जुबान ही है जिससे झूठ बोला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ईमान वालो, तुम मेरे गुलामों, तुम दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जुबान और सतर की तुम जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। झूठ से ही, जुबान से ही झूठ बोला जाता है, जुबान से ही चुगलखोरी होती है, जुबान से ही गीबत होती है, जुबान से ही वो किसी पर इल्जाम लगाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जुबान और सतर की तुम ही जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं।
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिदक़िहिम, ताकि अल्लाह सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई का बदला दे दे। क़यामत के दिन जरूर बदला मिलेगा मेरे भाई, दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी, क़यामत के दिन उसका बदला मिलेगा। झूठ को छोड़ दे, सच को अपना, सच का इनाम है, और झूठ हलाकत है, बर्बादी है, जहन्नम का गड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का साथ हो जाओ, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ, सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से भी डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का साथ देने का हुक्म है। यहां पे कोई भी सच बोलता है, कहते हैं यार ये अच्छा नहीं कर रहा, सच बोलने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता, झूठ बोलने वाले को अच्छा समझा जाता है। नहीं नहीं मेरे भाई, अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालों, और कूनो मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों सच बोलने वालों के साथ दो। अल्लाहु अकबर। लिहाजा सच बोलने वालों का साथ दोगे तो ये तुम्हारे लिए फलाह का जरिया बनेगा और बका का जरिया बनेगा। हजरत हुजूर गौस समदानी, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जब घर से निकलने लगे तालीम के लिए, रास्ते में जब काफिले को लूटने के लिए डाकू ने काफिले को लूटना शुरू कर दिया, तो हुजूर गौस आजम की भी तलाशी ली जा रही है। हुजूर गौस आजम से पूछा गया आपके पास क्या है? फरमाते मेरे पास 40 दिनार है या 40 दिरहम है। तो उन्होंने कहा कि तलाशी ली तो कुछ भी ना निकला। वो सरदार के पास गए, हम बार बार तलाशी लेते हैं लेकिन निकलता कुछ भी नहीं, लेकिन ये बच्चा कहता है कि इनके पास कुछ है, 40 दिनार है। तो जब सरदार ने कहा कि ऐ बच्चे, हर बंदा जो है वो माल छुपा रहा है, आप क्यों जाहिर करना चाहते हो? तो हुजूर गौस आजम फरमाते हैं मेरी मां ने कहा था जब चलते हुए, तो मां ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मैं सच बोल रहा हूं, मेरी गुदड़ी के अंदर मेरी मां ने 40 दिनार या दिरहम सी कर दिए हैं। तो वहां पे उस डाकुओं का सरदार वो कहने लगा कि मैं अल्लाह से वादे किए हुए को मैं बेवफाई कर रहा हूं, वादे खिलाफी कर रहा हूं, और ये बच्चा है कि मां से वादा किया हुआ उसकी वफादारी कर रहा है, उसकी अहद की पासदारी कर रहा है, मां से किए हुए वादे की पासदारी कर रहा है। लिहाजा वो डाकू पूरा गिरोह ही ताइब हो गया। अरे सच की ये बरकत है। हुजूर गौस आजम ने सच बोला, मां ने कहा बेटा सच बोलना, झूठ ना बोलना। हुजूर गौस आजम के सच बोलने की बरकत से पूरा गिरोह ही डाकुओं का ताइब हो गया। मेरे भाइयों, कारोबार करते हो, किसी भी मामलात में बैठे हुए हो, कोई भी काम चला रहे हो, किसी भी जगह पे बैठे हुए हो, आज दुकानदार बैठा दुकान पे होता है, फोन पे कोई कॉल आती है, लेन देन वाला सिलसिला, कोई बंदा पैसे लेना चाहता है, लेने हैं, वो कॉल करता है कि भी मैं आ जाऊं, आप पैसे मुझे दे दें, जरूरत है। तो वो कहता है मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूं या किसी और शहर में गया हुआ हूं, एक हफ्ते बाद या मंथ बाद आना। हालांकि बैठा दुकान पे है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की का फरमान है झूठे पर अल्लाह की लानत। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने वाला जो है, अल्लाह अकबर, मोमिन के अंदर झूठ नहीं आ सकता, खियानत नहीं कर सकता, मोमिन के अंदर झूठ नहीं आ सकता। और एक शख्स ने नबी करीम सफवान बिन सलीम ताबी से मुरसलन रिवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लम से पूछा क्या मुसलमान नामर्द भी हो सकता है? फरमाया हो सकता है। फिर पूछा क्या बखील भी हो सकता है? जवाब दिया हो सकता है। फिर फरमाया, फिर अर्ज किया या रसूल सल्लम झूठा भी हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। अगर तू मुसलमान है तो झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि हुजूर का फरमान है मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, बखील हो सकता है, वो और भी बहुत ज्यादा बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन झूठा मुसलमान नहीं हो सकता। अगर मुसलमान हो तो झूठे ना बनो, झूठ मत बोलो, क्योंकि हुजूर का फरमान है मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ کہ دور حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو منافقین تھے وہ بار بار جھوٹ بولتے تھے، بار بار جھوٹ بولتے تھے، دل سے کوئی اور بات ہوتی تھی، زبان پہ کوئی اور بات ہوتی تھی، لہذا سامنے کچھ اور ہوتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور وہاں پہ سامنے کچھ اور ہوتے تھے، پوشیدہ طور پر کچھ اور ہوتے تھے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا، زبان پر کچھ اور ہوتا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا، یہ منافق یہ دل کے بھی بے ایمان ہے، زبان سے بھی بے ایمان ہے، لہذا یہ منافق لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن علماء بھی، ایک عالم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ایک سخی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور قاری بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عالم سے اور سخی سے، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے شہید سے کہ تمہارا کیا عمل تھا؟ اور شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان کو قربان کیا، تیری راہ میں جان قربان کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر شہید کو وہ لے جائیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا عمل تھا دنیا کے اندر؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، میں نے تبلیغ کی۔ اللہ فرمائیں گے یہ جھوٹا ہے، فرشتوں اس کو پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ اور پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی سے فرمائیں گے تمہارا کیا عمل تھا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے مال قربان کیا ہے، اور تیری رضا کو سامنے رکھا، مال قربان کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی نام آوری کے لیے شہید ہے، وہ اپنی یہ کہ میرا نام بن جائے کہ میں بہت بڑا شہید تھا۔ سخی ہے وہ سخاوت کے لیے، یہ نام کمانے کے لیے۔ عالم ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑا عالم کہا جائے، مجھے قاری کہا جائے، لہذا یہ جھوٹے ہیں، ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیو، جھوٹ ہلاکت ہے، صدق نجات ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ جھوٹ کا دامن چھوڑ دو، سچائی کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کا دامن ہم سے چھوڑا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔